میں ہوں آپ کا میزبان رانا الیاس، اور آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں ایم ڈی برائٹ فیوچر اسکول پنگران، جن سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کا اپنا وقت دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رانا الیاس صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لایا۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے گا کب سے آپ نے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا، اور پھر بنیادی طور پہ جب آپ نے اس ادارے کو ایک نام دیا، بیٹھے سسٹم پہ، تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ جی بہت شکریہ رانا صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس ادارے کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ ادارہ ہم نے 2012 میں اس کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ ادارے کا نام ادارہ برائٹ فیوچر اسکول اینڈ کالج، اور اس ادارے کے قیام کے جو مقاصد تھے وہ سب سے اہم مقصد یہی تھا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر ہم اپنے اس ادارے کے قیام کا جو اصل مقصد تھا اس علاقے کے اندر کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کام کیا جائے۔ تو جب ہم نے ادارے کو سٹارٹ کیا تو اس وقت اس علاقے کے اندر کوئی کالج موجود نہیں تھا، اور ابھی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک دو ہائر سیکنڈری اسکول یہاں پر کام کر رہے ہیں، ایک تو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پہنگا اور دوسرا بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہے نصرہ۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی کالج انٹر کالج یا ڈگری کالج نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے شروع میں یہاں ایجوکیشن کے بعد جب میں یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ کا شکر ہے مشکلات ہوئی ہیں تھوڑی بہت ہی، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ مشکلات ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ یہ الیان پیگاں اور اس کے محیطہ جتنے علاقے ہیں، آلیاں، چمبا، دیویاں، بانی شدرا، اور اسی طرح ان سب علاقوں سے بچے آپ کے پاس جی بالکل علاقے کے لوگوں نے بھرپور تعاون کیا، بچے یہاں پر آئے، اور آج الحمدللہ اس مرتبہ جو ہمارا کالج کا یہ جو 8واں سیشن جو ہے جو کلاس جو ہماری یہاں سے فری ہو کے گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے بتائیے گا، یہ جو لوگ آپ جن علاقوں کا آپ فکر کرتے ہیں، پنجرا دیگر دائیں بائیں جو علاقے ہیں، وہاں سے بچوں کے آنے جانے کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ کیا اسکولس کو گاڑی آپ کی لگائی ہوئی ہے یا اپنے طور پہ آتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے والدین نے خود شفٹ وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، گاڑیاں لے کے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پہ دیگر ادارے بھی ہیں، بوائز ہائی اسکول ہے، گرلز ہائی اسکول ہے، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ادارہ ریڈ فاؤنڈیشن ہے، وہاں پر بھی بچے آتے ہیں۔ کمبائنڈ گاڑیاں جو ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے بتائیے گا، پنجرام میں ریڈ فاؤنڈیشن کا بھی بڑا نام ہے۔ میں سرکاری اسکول کو اس لیے ٹچ نہیں کرتا کہ ہمارے زیادہ تر جو رجحان ہے ابھی وہ پرائیویٹ سیکشن کی طرف لوگوں کا بڑا ہوا ہے کہ سرکاری سسٹم میں تعلیم نہیں ہے، لیکن بعض جگہ پہ اچھی تعلیم ہے، ہماری ٹیچر ہمارے اچھے ہیں، لیکن آپ کے اور ریڈ فاؤنڈیشن کے درمیان میزان کیسا ہے بچوں کا؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایونٹس بھی ہوتے ہوں گے، دیگر تقریبات بھی ہوتی ہوں گی، تو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارا جو ریڈ فاؤنڈیشن، میں نے خود ریڈ فاؤنڈیشن میں ٹیچنگ کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ بیٹا تک ادارہ کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور ہمارا جو میرا مقصد اس ادارے کے قیام کا تھا جی وہ صرف میٹرک اور ایف ایس سی لیول کے جو لوگ ہیں بچے، خاص طور پہ ہماری بچیاں جو یہاں سے ٹریول کر کے ڈھیکا یا مظفرآباد نہیں جا سکتی، اور میٹرک کے بعد ان کی تعلیم کو جو مسائل جو درپیش تھے اس حوالے سے ہم نے کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارا بڑا اچھا رجحان ہے ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ، کیونکہ گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ہم ہمارا آنا جانا رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے، آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں۔ ٹوٹل تعداد ہمارے اس وقت برائٹ فیوچر اسکول اینڈ کالج میں بچے اور بچوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے اس وقت آپ کے پاس؟ سر لاسٹ ایئر کی بات کریں تو ہمارے پاس جو 556 یعنی 556 بچہ جو تھا وہ رجسٹر تھا۔ ابھی ہمارے پاس اپریل میں 10th کی کلاس جو ہے وہ پیپر دے کے یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکی ہے۔ اسی طرح سیکنڈ ایئر کی کلاس بھی ہماری وہ پیپر دے کے یہاں سے چلی گئی ہے۔ تو یہ دو کلاسز کو مائنس کر کے نئے ایڈمیشن وغیرہ ہوئے ہیں، کچھ ایڈمیشن ہر سال میں جاتے بھی ہیں۔ تو ابھی فی الحال تعداد تو نہیں کہی جا سکتی کتنی ہے، 500 کے راؤنڈ اباؤٹ ابھی بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بتائیے کہ جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، کچھ غریب لوگ بھی ہوں گے، کچھ کمزور لوگ بھی ہوں گے، تو یہ کیسے مینیج ہوتا ہے فیسوں کے حوالے سے؟ جو یہ ساتھ بتائیے گا سب سے زیادہ آپ فیس ہے مثال سیکنڈ ایئر کے جو طلبہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کی فیس کتنی ہے؟ سر یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے ادارے کے قیام کا
कहीं भी मकसद ये नहीं था कि हम यहाँ पर कोई बिजनेस करेंगे। ओवरऑल यही कंसेप्ट होता है कि ये तो बस एक कारोबार है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे पास कभी आएँ तो ऑफ़िस में बैठें तो आप हमें इसके हवाले से बताएँगे। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि यहाँ सब तमाम चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ठीक है। लोगों के साथ जितना हम ताउन कर सकते हैं उतना ताउन कर रहे हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरी में स्कॉलरशिप रखी हुई हैं, ठीक हो ऑर्फन्स गया। हैं, नीडीज़ हैं, ठीक है, 2 से 3 बच्चे जिस फैमिली से आ रहे हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ों को अलग देखते अलग हुए पैकेजेस आपने रखे पैकेजेज़ हैं। हमने अच्छा मुझे सबसे ज्यादा फीस मतलब आपकी कितनी है जो आपने हमारी रखी जो इदारे की तरफ से? हमारी जो 500 से स्टार्ट होती है ठीक नर्सरी हो से गया। ठीक और ये जो सेकंड ईयर है वो हमारे पास 25 रखी हुई है। ठीक हो तो गया। ये इसके राउंड तो अबाउट ये जो है सारे बच्चे तो देने काबिल नहीं होते तो बस मैक्सिमम आपका निजाम चल जाता है। अल्लाह का शुक्र है निज़ाम हमारा भी चल रहा है। अच्छा असल में मालूमात ये मिली है कि आपकी जो इमारत है स्कूल की जितना भी एरिया है ये आपका ज़ाती है या आप इसको रेंट पे चलाते हैं तो ये इस पे क्या है? नहीं ये ज़ाती अपनी है, अपनी जगह 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 है। अपनी है। वालिद साहब की ने ली हुई थी तो जब ये आइडिया के मैंने जब ये स्टार्ट करने का सोचा तो वालिद साहब से और बड़े भाई से मशवरा किया कि यार मुझे इसकी ज़रूरत पड़ चुकी है ठीक कि है। आगे जाना है। पहले शुरू में मैं रेंट पे था। फिर वालिद साहब ने कहा कि यहाँ आप बिल्डिंग बना दें और फिर यहाँ पर मैंने बिल्डिंग स्टार्ट की। अभी भी बहुत सारे कमियां रहती हैं उसपे मुसलसल हम वक्तन फवक्तन जो भी हमारे आउटपुट जो आ रहा है उस पे हम इस पे थोड़ी थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। 500 से 550 तलबा को भैया वक्त में लीड करना, उनकी देखभाल करना, उनके बाकी मामलात को देखना, उसके लिए एक टीचर का बड़ा अहम रोल होता है। तो आपके पास जो टीचर पढ़ाते हैं, हमने देखा आज कुछ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारा है इदारे के अंदर तो उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद है। मैं बाकी बात को बाद में लूँगा, उलमाए किराम को ख़ास तौर पे अपने साथ जोड़े हुए वजह बताएँगे? असल में जो बुनियादी मकसद है वो एक अच्छा मुसलमान एक अच्छा इंसान इंसान और अच्छा शहरी बनाना जो हमारा मकसद है। बाकी चीज़ें साथ में जो दुनियावी तालीम है वो साथ साथ चलती रहेगी। चलती लेकिन रहेगी। जो बुनियादी चीज़ जो है वो किरदार साजी है। किरदार और साज़ी किरदार साजी के लिए अल्लाह का शुक्र है कि एक यहाँ आलम पर काम है। वहाँ का बड़ा किरदार है। भाई हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो भी हाफ़िज़ हैं, इमाम मस्जिद हैं। ठीक हो ठीक गया। है, तो वो ये इसको लीड कर रहे हैं। तो बाकी उलमा असल में अभी जो हिफ़ाज़ुल कुरान और नाज़िल कुरान का जो गवर्नमेंट ने लाज़मी करार दिया है तो इसके लिए प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी आलम के बगैर कोई भी नहीं पढ़ा ठीक है। सकता। ये बताइएगा जो आपके पास टीचर इस वक़्त काम करते हैं उनकी तालीम क्या होती है? कितनी काबिलियत उनके पास होनी ज़रूरी है? क्या उसके बगैर आप लेंगे, नहीं लेंगे, क्या करेंगे? हमारे पास जो बुनियादी बेसिक क्लासेस जो हैं जो प्राइमरी और मिडिल से हुआ है उसके लिए हमने टीचर का जो रखा हुआ है बीए बीएड। ठीक है। तो बीए भी चल जाते हैं जो भाई बीएड हर वाला जो कंटिन्यू होते हैं तो इस तरह हम ले लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास 9 10 और फर्स्ट सेकंड के लिए जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो कम से कम जो है वो बीएस या एमएससी इसके अलावा उसके लिए हम बंदा नहीं लेते। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक़्त सरदस्त ब्राइट फ्यूचर स्कूल एंड कॉलेज जो पंजगुराह के अंदर अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रहा है। आप एज़ ए एमडी इस इदारे को लीड करते हैं। उस्ताज़ा की तादाद क्या है और अभी किन-किन मसाइल का आपको सामना है? जी जो इस वक़्त हमारे पास जो उस्तादा की जो तादाद है वो 24 है। ठीक हो गया। और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बेहतर यहाँ पर जो हैं वो मैनेज हो रही हैं। लेकिन जो असल चीज़ मैं ये समझता हूँ कि लोकल एरिया में कुछ अभी भी कुछ सब्जेक्ट के टीचर की कमी है कमी जिसके है। लिए हमें मुज़फ़्फ़रबाद, डेक्का या दीगर इलाकों अच्छा से कोई आपके जो टीचर्स हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद या डायमंड साहब के आपके पास था? जी, जी, बिल्कुल हमारे अच्छा। पास मुज़फ़्फ़राबाद से भी आ रहे हैं, ठीक उसके है। बाद बाहर से यानी कई यहाँ से बाहर से आ रहे हैं। अच्छा। और सबसे अहम बात जो इस वक़्त हमारे पास जो साइंसेज़ के तकरीबन ये समझ लें कि हमारे पास जो 24 टीचर्स हैं, उनमें से 13-14 टीचर जो हैं वो यहाँ पर मैट्रिक और एचएससी करने के बाद अपने यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अपनी अच्छा वही खिदमत दे टीचर रहे हैं हैं। जो यहाँ पे तालीम हासिल जी, करेंगे। जी, बिल्कुल। अच्छा तो इनकी जो बेसिक तनख्वाह जो हदिया ये उसको देते हैं यूँ समझ लें तो वो कितना है? कि कैसे मैनेज करते हैं? एक बंदा मुज़फ़्फ़राबाद से चल के आपके पास यहाँ पे आता है तालीम तो वो जो बड़ी क्लासेस हैं उसमें हम पीरियड वाइज रखा हुआ है। अच्छा। और जो प्राइमरी और मिडिल का जो है वहाँ पर पैकेज है। ठीक हो गया। तो टीचर शुरू में तो बड़े मसाइल थे। ठीक हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं और कोशिश करते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज में जो चीज़ें हैं वो अच्छा करके उनको दिया जाए। ये बताइएगा
बोर्ड में आपके इस साल जो सेशन अभी आपका स्टार्ट हुआ है, कितने मार्क्स लिए बच्चों की, ओवरऑल पोजीशन क्या रहती है? बोर्ड में हमारी अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर बेहतर कि हर साल बेहतरी आ रही है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नंबर का अभी मैं रिकॉर्ड ठीक तो है, नहीं रखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 80% से ऊपर मार्क्स बच्चे जो हैं वो 80-90% तक लाते हैं। ठीक हो गया। तो रियात है यहाँ पर सेकंड टाइम एकेडमीज और बाकी चीज़ों की जो कमियाँ जो है इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगला सवाल ये है कि इस पसमंदा इलाका हम इसको कह सकते हैं, मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है, लशराट का इलाका है, आप अभी आपने इस छोटी सी जगह पे स्कूल बनाया, अपनी मदद आपके तहत साइंस के लिए बच्चों के लिए लैब का इंतजाम भी आपने कर रखा है, ये कैसे मैनेज हुआ सारा? सर बस ये इसमें वालिदैन की दुआएं हैं, उनकी कोऑपरेशन है, बड़े भाई हैं, वालिद हैं, उन्होंने बड़ी कोऑपरेशन की है। और उसके अलावा अदारे के साथ कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिन्होंने शुरू दिन से अदारे को सपोर्ट किया, और उनकी मेहनत से और अदारे के अंदर से भी कुछ जनरेट करके बजट को ये सारी चीज़ें मैनेज की। अल्हम्दुलिल्लाह साइंस की लैब हमारे पास मौजूद हैं। कंप्यूटर की जो हमारे पास लैब है वो 20 कंप्यूटर पर मुश्तमिल है। माशाल्लाह, और साथ में हमने एजे के टोयोटा से रजिस्ट्रेशन भी हासिल कर रखी है। तो जबरदस्त। उसमें हम बच्चों को उसका टाइम टेबल क्या है सर? 6 महीने का जो कोर्स है आपका? लेवल 2 का कोर्स जो है हम करवाते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग उसकी अभी सेकंड टाइम होती है क्लास, जब बच्चे जो मैट्रिक से फ्री होते हैं, अच्छा, एसएससी से फ्री होते हैं, तो उनको हम 6 महीने का वो कोर्स करवाते ठीक हैं हो गया। उनके लेवल लिए 2 का। आपने यही टीचर रखे हैं या अलग से टीचर नहीं, रखे उसके लिए अलग आता है, इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है। हैं? ठीक है, वो शाम के टाइम पे तो सेकंड टाइम आ वो जाता है। सेकंड टाइम आ जाता है, ठीक तो हो जब गया। वो क्लास स्टार्ट होती है। बाकी ये अपनी मेरी कोशिश ये है, फोर्थ क्लास से हमने सेकंड ईयर तक प्रैक्टिकल का एक बाकायदा सेटअप रखा हुआ है कि प्रैक्टिकल रखेंगे। और इस मरतबा की जो हमारी प्लानिंग है उसमें हमने ये शामिल किया हुआ है कि छुट्टियों के बाद हमारी लैब क्योंकि थोड़ी सी वो एक साइड पे है, तो हम इंशाल्लाह बिल्डिंग एक शोरूम मजीद बना के छुट्टियों वहाँ में पे बना शिफ्ट के करेंगे। वहाँ शिफ्ट करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी जो हमारे पास 7-8 का जो बच्चा है वो जब मैट्रिक पास करेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह वो तो 1 साल का जो डिप्लोमा जो है वो भी वो उसको मिल कोर्स सके। उसको साथ अच्छी मिलेगा बात है जी, इंशाल्लाह। आपका इतनी फर्ज तैयारी अच्छा। मुगल साहब, अच्छे खानदान से, अच्छी बिरादरी से आपका ताल्लुक है। आपके बिल्कुल पड़ोस में रीड फाउंडेशन का इदारा है, बड़ी इमारत है, 3 मंजिला इमारत, पुरसुकून माहौल, साफ सुथरा, सफा जो है ना, शफाफ माहौल, साथ ही सरकारी स्कूल की इमारत भी मौजूद है। इन इदारों के दरमियान आपने यूँ समझ लें कि बस अपने लिए एक मिसाइल खड़े किए। फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है आपके इदारे में और उन इदारों में? बच्चे इतनी तादाद में आपके पास आते हैं, क्या फ़र्क है? फ़र्क तो एजुकेशन में कोई फ़र्क नहीं। हर बंदा अपने हिस्से की जो है वो आउटपुट लगा रहा है, और ठीक जितने है, अपने हिस्से की मेहनत रीड फाउंडेशन हो, हाई स्कूल हो, बॉयज़ हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, यानी कोई भी इदारा है, ठीक है, बशर्ते टीचर, हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा हो। ठीक है। तो यहाँ पर इतना स्कोप बनता है, इतने अब रीड की बात करें, वहाँ 4 साढ़े 400 स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इतनी बड़ी इमारत होने के बावजूद 450 आपके पास 550 बच्चे हैं। मेरे पास असल में वो मिडिल अदारा है, ठीक है, मिडिल अदारा है, यहाँ पर कॉलेज है, तो ये कोई इतनी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैनेजेबल बात है। ठीक हो गया। हर बंदा अपने हिस्से का वो चला के ला रहा है। बहुत अच्छे अदारे हैं, फिर यहाँ का अगर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूँ वहाँ पर भी अच्छी तालीम हो रही है, कंपटीशन की पूरी फिजा है, ठीक और हो गया। कंपटीशन से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल जो सही। लोग आ रहे हैं, जो हमारे भी लोग देखते हैं, देख के बच्चा अदारों में दाखिल करते हैं, ये उनकी वालिदैन तक होता है कि वो क्या देखते हैं। ठीक हो मतलब गया। अपने हिस्से की हम कोशिश कर रहे हैं, हमें हमारे अंदर भी बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश है। ठीक हो गया। अपने अंदर अपनी खामियों को बेहतर करने की, अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश चलें जी, करते हैं। अल्लाह करे ये कंपटीशन इसी तरह जारी रहे, इससे आम लोगों को फ़ायदा होता है, बच्चों के वालिदैन को फ़ायदा होता है। जब आप साल के बाद कोई अपना इदारे का रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, उसमें बच्चों के वालिदैन बैठे होते हैं, अज़ीज़ व अक़रबा बैठते हैं, तो वो जब बच्चों की कारकर्दगी देखते हैं, मुतमईन हो जाते हैं और फिर वो अपने बच्चों को आपके इदारे के पास भेजते हैं। मुख्तसर सा लास्ट पे पैगाम दीजिएगा अपने इस इलाके के लोगों को, जहाँ-जहाँ से आपके पास बच्चे आते हैं, ये वीडियो उन सब के पास जाएगी, सारे लोग देखेंगे, तो क्या पैगाम होगा आपका? बस एक ही पैगाम है कि अपने बच्चों की तालीम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, ठीक है, अच्छी तालीम दिलाएँ और अच्छे इदारों में उनको तालीम दिलवाएँ। उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, उनको देखें कि वो आपका बच्चा किसी नेगेटिव एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है। ठीक है, ये बच्चे आज इनके ऊपर आप तवज्जो रखेंगे, कल ये आने वाली नस्लों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और अगर आज आप इनके ऊपर तवज्जो नहीं रखेंगे, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा आपका, तो ये एक बच्चा बुराई में लगेगा तो अपने साथ वो पूरे माशरे को बुराई की तरफ ले जाएगा।
तो यही मेरा आज के ठीक हो गया जी, बहुत अच्छा पैगाम वालिदैन के लिए। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वालिदैन की होती है जी, जिससे ज़्यादा वक़्त जो बच्चा है वो अपने वालिदैन के पास गुज़ारता है, फिर कुछ वक़्त 5 से 6 घंटे का टाइम वो अपने उस्ताद के पास आता है, टीचर के पास आता है। टीचर की कोशिश होती है कि मेरा बच्चा बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट देकर न सिर्फ़ अपना सर बुलंद करे बल्कि अपने इदारे का नाम भी बुलंद करेगा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये इदारा इसी तरह अपने जो सफ़र को जारी और सारी रखेगा और साथ ही साथ अपना नाम भी रोशन करेगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे यानी अपने मेज़बान राना इलियास को पंजग्रां से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।